Welcome aspirants, welcome to Siram IS. My name is Saurabh. Welcome to this series, one PYQ a day. If you are writing mains 2025, this is a very important series that the Siram IS brought for you. And we are discussing one previous year question from the mains papers every day of belonging to different subject. Today is the day of geography, and that is why I am here. I'm going to discuss a one PYQ from mains last year. And let's directly jump into our question, which is something which caused a lot of confusion in the minds of the aspirants last year. Obviously, those who were not properly prepared for these kind of questions. So, question tha, what is a twister? What is a twister? Why are the majority of the twisters observed in area around the Gulf of Mexico? 15 marker, 250 words. So many of the aspirants which I found who were not prepared for this question, have not studied these kind of phenomena, they somehow confused it with what tropical cyclones or hurricanes. No, and that was something a mistake in a way they have committed. बट यहां पे सवाल हमको देखना है, फिर से आप पढ़िए. क्वेश्चन है व्हाट इज ए ट्विस्टर. ट्विस्टर ऑपरेटिव वर्ड इज व्हाट. क्या होता है, क्या होता है. आगे जो स्टेटमेंट है वो है वाई, क्यों. These are the majority of the twisters observed in area around the Gulf of Mexico. So this is a geography question, a technical question. If you don't know about the phenomena, there are very less chances that you will write an accurate answer. So twisters are very interesting natural occurrences. They are what? आप जब introduction लिखने जाओगे, answers का सबसे problematic part which I find is in aspirants is writing the introduction, proper introduction. Introduction is the face of your answer. It should be very good. It should be simple. It should tell the examiner your approach to the particular question. अब यहाँ पे introduction कैसे लिखेंगे इसका? You can start, because it's a technical question, you should directly start with the definition कि twister होता क्या है. What is a twister? This is an informal word that we give to tornadoes. It's a tornado. So you will start that this is an informal word for the tornado, which is what? A funnel shaped. It's a informal word for tornado. एक funnel shaped. It's a funnel shaped, rotating, rapidly rotating column of wind, which is connected with a thunderstorm to the ground. This is what a twister is. इनफॉर्मल वर्ड है टॉर्नेडो का. टॉर्नेडो क्या होता है या ट्विस्टर क्या होता है? ये एक रैपिडली रोटेटिंग फनल शेप्ड सिस्टम है जो कि कनेक्टेड होता है, थंडरस्टॉर्म को कनेक्ट करता है ग्राउंड के साथ. सो ऑलरेडी इट प्रेज्यूम्स दैट देयर शुड बी ए थंडरस्टॉर्म ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन द एरिया, और इसको ये फनल शेप्ड वर्जन में कनेक्ट कर देगा ग्राउंड से. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के जैसा जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, ऑलमोस्ट आपको यहां पे वो दिखाई देगा, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. लेकिन आपसे एग्जामिनर डिफरेंस नहीं पूछ रहा ट्रॉपिकल साइक्लोन से, या जिन्हें हम हरिकेन कहते हैं, उनसे आपका डिफरेंस नहीं पूछा जा रहा. दे आर सिंपली आस्किंग यू स्पेसिफिकली अबाउट ट्विस्टर. दे आर नॉट आस्किंग यू टू कंपेयर इट विद एनी सिस्टम. तो नाउ वंस यू हैव गिवन अप द डिफिनेशन, you should start with what? With the part. What वो पूछ रहे हैं, ये क्या है? What they are asking is a twister. So after the definition, naturally you will talk about its formation. You will divide this portion into two parts. What in formation? Second is characteristics. Natural जो flow होगा आंसर का वो ये होगा. तो फॉर्मेशन में हम बात करेंगे किस चीज की, कैसे इसका ये फॉर्म होता है. तो it, as I said, it presumes the existence of a thunderstorm, जिसे हम बोलते हैं सुपर सेल थंडरस्टॉर्म. सुपर सेल थंडर स्टॉर्म, इसको मेसोसाइक्लोन भी कहा जाता है. क्यों?
क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट होते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं मेसो साइक्लोन, सुपर सेल थंडरस्टॉर्म, जिनके साथ इसका कनेक्शन है। इट फॉर्म्स आउट ऑफ दिस सुपर सेल थंडरस्टॉर्म। दूसरा जो फॉर्मेशन के लिए आप बात करोगे, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इट रिक्वायर्स फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स लाइक द प्रेजेंस ऑफ विंड shear. That's how it forms. Wind shear क्या होता है? This is also a terminology which is very relevant for tropical cyclones. Wind shear is nothing but the change, the variation in the wind speed and direction when you go up in the atmosphere. So vertical जब आप जाते हो, vertical जो changes होते हैं wind के speed और उसके direction में, उसको हम बोलते हैं wind shear. तो ये presence वहां पे होना चाहिए। एयर में इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए। इंस्टेबिलिटी इज ऑल्सो pretty much required. Low pressure area, if it is there, it will work well. Moisture presence should also be there. So these kind of things are important for the formation of the twister. फिर आप बात करोगे कैरेक्टरिस्टिक्स की आगे इसी आंसर में। कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आप बात करोगे तो यू विल टॉक अबाउट कि कैसे इसकी स्पीड कितनी होती है। स्पीड इट वेरीज फ्रॉम 100 किलोमीटर पर आवर टू 300 किलोमीटर पर आवर। जो एरिया ऑफ इंपैक्ट होगा वो लोकलाइज्ड होता है इसमें, कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन विच इन्फ्लुएंसेस अ लॉट ऑफ द एरिया। यहाँ पे जो इंपैक्ट होता है लोकलाइज्ड होता है, कुछ किलोमीटर्स के ऊपर इसका इंपैक्ट होता है, और जो उसको ड्यूरेशन होता है वो भी कुछ मिनट या कई बार कुछ घंटे तक होता है, कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच टेक्स वीक समटाइम। Then characteristics, which is very important, one important characteristics of your twister or tornado is that एक तो स्पीड के हमने बारे में बात कर ली, दूसरा लोकलाइज जिसका इंपैक्ट है, ड्यूरेशन काफी कम होता है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। देन यू नीड एयर मासेस। एयर मासेस, द कोलिजन ऑफ द एयर मासेस, तो कोल्ड एयर मास और जो वार्म मॉइस्ट एयर मास है, जब वो टकराते हैं तो टॉर्नेडो का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एयर मास आप यहां पे लिखेंगे, और एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी जो कि हमने मेंशन की थी उसको ही आगे आप लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट जेट स्ट्रीम्स दिस गेट फॉर्म्ड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे। these are the characteristics of the tornado slash twisters. Once you are done with the first part of the answer, जो कि आपसे पूछा गया था what is a tornado, तो what में ये दोनों चीजें आ जाएंगी। पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है, एंड देन यू विल कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर आंसर, एंड दैट वाई दे आर स्पेसिफिकली आस्किंग दिस क्वेश्चन कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसको गल्फ ऑफ अमेरिका भी अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही इनका फॉर्मेशन ज्यादा क्यों होता है। देर आस्किंग मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑब्जर्व्ड इन एरिया अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। व्हाई? there should be some reason. So by the formation and characteristics you can also infer कि ये जब जरूरी है दोनों चीजें, तो you will understand कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ज्यादा जो ट्विस्टर्स हैं, टॉर्नेडोज हैं, वहां पे फॉर्म हो रहे हैं। तो नेचुरली इट इज देयर, व्हाई? बिकॉज द सप्लाई ऑफ वार्म एयर विच इज देयर, मॉइस्चर जो है यहाँ पे काफी ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो इक्वेटर के बहुत पास है, एंड बिकॉज ऑफ इट इंसुलेशन यहाँ ज्यादा होता है, वार्म वाटर्स हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर जो कंटेंट है एयर में काफी ज्यादा है। एंड लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दीज टॉर्नेडोज आर व्हाट? दीज आर आल्सो एटमॉस्फेरिक ओशनिक सिस्टम्स जहां पे हीट एक्सचेंज हो रही है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में होती है, वैसे यहां पे जो हमारी अर्थ है, द मदर अर्थ, इट इज एडजस्टिंग इट हीट बैलेंस। तो ये एक ओशनिक, एक तरीके से जब ओशन में भी होता है, कॉन्टिनेंट में भी होते हैं, प्राइमरली ओशंस में जो होते हैं उनको हम वाटर स्पाउट्स बोलते हैं, जो लैंड पे होते हैं उनको हम ट्विस्टर या टॉर्नेडो बोलते हैं। ये हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म है, हीट जो एक्सेस हीट है वो ट्रांसफर होती है इसके। तो सप्लाई ऑफ वार्म एयर मास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैक्सिको में ऐसा क्या हो रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहां पे जो कोलिजन है एयर मासेस का वो काफी ज्यादा होता है।
क्यों? क्योंकि कनाडा से या जो रॉकी माउंटेन्स हैं, यहां से रॉकी माउंटेन द चेन विच इज वेरी रेलिवेंट इन अमेरिकन ज्योग्राफी, वहां से जो कूल एयर है, जो एयर मास है, इट इज कमिंग एंड इट इज इंटरैक्टिंग violently with what? Warm air mass, and that is why in Gulf of Mexico you see more and more tornadoes. तीसरा रीजन बहुत बड़ा जो है वो है हरिकेन्स का प्रेजेंस। हरिकेन्स का प्रेजेंस, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन है वहां पे, वो फॉर्मेशन होते हैं, उनकी वजह से ही तो ट्विस्टर फॉर्म हो रहा है। तो प्रेजेंस ऑफ द हरिकेन्स विच आर द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ देम आर increasing because of the climate change, and more hurricanes mean more possibility of the twisters. ये एक बहुत बड़ा रीजन है। चौथा रीजन जो है आपका क्यों गल्फ ऑफ मैक्सिको में ज्यादा ये फॉर्म हो रहे हैं, उसकी वजह है बहुत बड़ी, एंड दैट इज कि गल्फ ऑफ मैक्सिको जिस ज्योग्राफी में लोकेटेड है, जो लैंडस्केप है, वो बहुत ही रेलिवेंट हो जाता है। तो अमेरिका के कुछ स्टेट्स जैसे टेक्सास हो गया, ओक्लाहोमा हो गया, कैंसस हो गया, ये जो स्टेट्स हैं इनको हम बोलते हैं टॉर्नेडो एली। जो लैंडस्केप है दैट इज वेरी फेवरेबल फॉर द कोलिजन ऑफ द वार्म एंड कूल एयर मासेस। तो जो लैंडस्केप है उसकी वजह से भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में मैक्सिमम जो टॉर्नेडोज हैं वो फॉर्म होते हैं। दैट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। प्लस यू विल टॉक अबाउट कि जेट स्ट्रीम का प्रेजेंस होता है, पर्टिकुलरली बिफोर समर, अर्ली समर, वहां पे जेट स्ट्रीम जो कि अपर एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी लेके आ जाती है, जिसकी वजह से भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में ज्यादा से ज्यादा आपको टॉर्नेडोज दिखाई देते हैं। लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है और दिखाई देते हैं। So that is how you will address this question in a very comprehensive way. Your answer should reflect that you understand the question deeply, you are addressing the demand of the question, you are addressing all the parts of the question, और आपका जो स्ट्रक्चर है आंसर का वो बहुत ही नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इट्स ए टेक्निकल क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड। ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही उनमें टेक्निकलिटीज होती, एक या दो क्वेश्चन वो हर साल दे देते हैं। दैट इज हाउ यू विल राइट दिस आंसर। If you don't address the demand of the question, you are navigating here and there, they will not award you the marks. अब इसको सवाल होता है कंक्लूड कैसे करोगे? तो कंक्लूजन में यू कैन टॉक अबाउट, आइदर यू कैन लिंक इट विद क्लाइमेट चेंज, that because of climate change more and more twisters are coming. You can also talk about in general language that how destructive they are natural hazards which are very destructive, can damage the infrastructure because of their wind speed and leads to loss of life. We need to be better prepared for it. ऐसे इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। और यू कैन सिंपली टॉक अबाउट द जनरलिटीज इन ए वे कि कैसे जो टॉर्नेडोज हैं इनका जो फॉर्मेशन है, इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का होना बहुत जरूरी है ताकि हम इनके बारे में जानकारी जल्दी से जल्दी मिल सके, सो दैट वी कैन प्रिपेयर, एंड पीपल नीड टू बी मोर एजुकेटेड, अवेयर अबाउट दिस थिंग। एंड प्लस कि कैसे जो ट्विस्टर्स और टॉर्नेडोज हैं वो गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो एरिया है उससे बाहर भी अब ज्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। 2 लाइन में, मैक्सिमम 3 लाइन में आपको कंक्लूड आंसर को कर देना। डोंट वेस्ट टू मच ऑफ वर्ड्स हियर, यू हैव एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो कि वो पूछ रहे थे आपसे। एक नीट क्लीन इंट्रोडक्शन देना है और एक नीट क्लीन 2 से मैक्सिमम 3 लाइन का कंक्लूजन दे देना है। द टास्क विल बी डन। So that is how you write a mains question. And those of you who are writing this year mains, answer writing practice is a must. And those of you who are thinking for the appearing next year, for you also, ultimately it is the mains which will dictate your rank, your selection, your cadre. तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफी मजबूत हो। तो यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस डेली। थैंक यू।